السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ شہر حیدرآباد میں مانسون کے دوران بارش کے پانی کے بہاؤ اور شہری سیلاب کے خطرات کے پیش نظر ہائیڈرا حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ماہرین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کا مقصد سیلاب سے بچاؤ کی مؤثر حکمت عملی پر غور و خوض کرنا تھا۔ ماہرین نے زور دیا کہ شہر کے آبی بہاؤ کے نظام کو بہتر طریقے سے سمجھنا اور ندیوں نالوں کی قدرتی راہداریوں کو محفوظ رکھنا سیلاب سے بچاؤ کی منصوبہ بندی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس ضمن میں پرانے ریکارڈز، سیٹلائٹ تصاویر اور موجودہ زمینی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تفصیلی سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے بھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری ترقی کے دوران آبی راستوں پر قبضے یا ان میں رکاوٹیں مستقبل میں بڑے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے بروقت اقدامات ضروری ہیں۔ مزید اقدامات میں ڈیجیٹل نقشہ سازی، متعلقہ محکموں کے درمیان رابطہ مضبوط بنانا اور شہریوں کو آگاہی دینا شامل ہیں تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ریاستی حکومت اقلیتی طبقات خصوصاً مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں بڑی تعداد غریب افراد کی ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے جو بھی فلاحی اسکیمات شروع کی جاتی ہیں ان میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے مکمل موقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب مامیڈی پلی میں عازمین کی سہولت کے لیے نیا حج ہاؤس تعمیر کیا جائے گا، جس پر 25 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے، اور اس سال حکومت کو 6000 درخواستیں موصول ہوئی جنہیں مکمل طور پر منظور کر لیا گیا۔ نامپلی حج ہاؤس میں عازمین کی روانگی کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں چیف منسٹر نے عازمین کو وداع کرتے ہوئے بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عازمین کو نیک خواہشات پیش کی۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک کی مختلف ریاستوں سے آنے والے حاجیوں کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کر رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج پر جانا آپ کا حق ہے اور حکومت اس میں مکمل تعاون کرے گی۔ حاجیوں کی خدمت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے MP بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مطالبات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ صرف اولڈ سٹی نہیں بلکہ اوریجنل سٹی ہے، اور اس کے لیے حکومت نے رکن پارلیمنٹ کی درخواست سے بھی بڑھ کر تقریباً 2000 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے، جن میں میٹرو توسیع، سڑکوں کی تعمیر، میرالم ٹینک، کیبل برج وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ فیس ریمبرسمنٹ جیسی اسکیمات میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جا رہا۔ راجیو یوا وکاشم اسکیم کے تحت مستحق مسلم نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے حج پر روانہ ہونے والے عازمین سے اپیل کی کہ وہ ملک، ریاست اور عوام کے امن و سکون کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ بھی حاجیوں سے موصول ہونے والی درخواستوں کا خیر مقدم کرے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اس موقع پر ریاستی مشیر محمد علی شبیر، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین حج کمیٹی مولانا خسرو بیابانی، چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال، صدر اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، دیگر عوامی نمائندے، حج کمیٹی اراکین اور افسران بھی شریک تھے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم ایک بار حج کو جانے کے لیے مکہ درشن کر لے کے دعا مانگنے کے لیے کوشش کرتے۔ اس بار 6000 لوگوں کو اللہ حکم جاری کیے حج آنے کے لیے، تو اسی لیے آج تلنگانہ راجیہ سرکار نے تلنگانہ کے جتنے بھی لوگ جا رہے اس کے ساتھ ساتھ 17 راجیوں کے لوگ یہیں سے حاجیوں کو جانے کے لیے ہم پورا انتظام کیے، اور یہاں سے جتنے بھی جا رہے ہمارے طرف سے تلنگانہ کے سرکار کے طرف سے جو منظور کرنا ہے تلنگانہ سرکار کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ حق ہے آپ لوگوں کا۔ آپ کے حق
कोई किसी से मांग के लेने का ज़रूरी नहीं है। आप बस आप लोग जो याद किए तो तेलंगाना सरकार ने वो काम करने के लिए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में एक मुनफरिद और दिलकश मंजर उस वक्त देखने को मिला जब दुनिया भर से आई हुई मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने खूबसूरती के साथ खेलों के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये शानदार इवेंट मिस वर्ल्ड फाउंडेशन की जानिब से ब्यूटी विद पर्पस प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद खूबसूरती के साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी, खेलों की अहमियत और बैनुल अक़वामी हम आहंगी का पैगाम देना था। आलमी हसीनाओं ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और योगा जैसे खेलों में भरपूर शिरकत की और अपनी फिटनेस, टीम स्पिरिट और नज़्म व ज़ब्त का अमली मुजाहरा किया। गच्चीबौली स्टेडियम खेल के रंगों और सकाफती हम आहंगी से जगमगा उठा, जहां मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदा हसीनाओं ने दोस्ताना मुकाबलों में एक दूसरे से सबक़त लेने की कोशिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेहमान हसीनाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया। इवेंट के दौरान हसीनाओं ने योगा की मुश्तरका मश्क भी की, जिसका मकसद आलमी सतह पर ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के तवाज़ुन को उजागर करना था। शहरियों ने मिस वर्ल्ड उम्मीदवारों को खुश दिली से दाद दी और स्पोर्ट्स में स्पिरिट के जज्बे की सताइश की। तेलंगाना के आला ओहदेदारान, मुकामी स्पोर्ट्स शख्सियात और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी इस इवेंट में शरीक हुए और इसकी कामयाबी की सताइश की। ज़राए के मुताबिक ये इवेंट नौजवान नस्ल के लिए एक मुस्बित पैगाम छोड़ गया कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि सेहत, नज़्म और किरदार की भी होती है। ये इवेंट जहां एक जानिब आलमी हसीनाओं के दरमियान खेलों का दोस्ताना मुकाबला रहा, वहीं ये तेलंगाना रियासत की मेहमान नवाजी, सकाफत और तरक्की पजीर स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर का रोशन आईना भी साबित हुआ। शहरियों ने तवक्को की है कि ये इवेंट रियासती नौजवानों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की जानिब राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेगा और हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह पर एक सकाफती व स्पोर्ट्स मरकज के तौर पर उजागर करेगा। जुबली हिल्स हलक़े कृष्णा नगर में सेवरेज न्यू पाइपलाइन का इफ्तिताह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें मेहमान ख़ुसूसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, MP अनिल कुमार यादव, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, जुबली हिल्स कंटेस्टेड MLA मोहम्मद अजहरुद्दीन मोहम्मद, असद यूसुफगुड़ा डिवीजन प्रेसिडेंट फेरोज खान भी मौजूद रहे। इस दिन जुबली हिल्स हलक़े के कार्मिका नगर बस्ती में भी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट BJP MP किशन रेड्डी, कॉर्पोरेटर CN रेड्डी भी मौजूद रहे। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के करीब आलमी मुकाबला हुस्न के सिलसिले में लगाए गए बैनुल अक़वामी परचमों में शामिल इसराइली परचम को एक मुकामी नौजवान ने एहतजाजन उखाड़ फेंका। ये वाक़या चंद लम्हों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और शहर भर में इस पर शदीद बहस छिड़ गई। ज़राए के मुताबिक इस नौजवान की शनाख्त जाकिर के तौर पर की गई। जाकिर ने न सिर्फ इसराइली परचम को हटाया बल्कि इस पूरी कार्रवाई की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड की। बादजा ये वीडियो मुख्तलिफ अफराद ने रीपोस्ट की, जिससे ये वाक़या तेजी से अवामी और मीडिया तवज्जो का मरकज बन गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे मिस वर्ल्ड मुकाबले के ज़िमन में रियासती सेक्रेटेरिएट के करीब मुख्तलिफ ममालिक के परचम नस्ब किए गए थे ताकि आलमी इत्तेहाद और सकाफती तनू का पैगाम दिया जा सके। इन्हीं परचमों में इसराइल का झंडा भी शामिल था, जिसे देखकर मस्कुरा नौजवान ने उसे उखाड़ फेंका। ये वाक़या सामने आते ही अवामी हल्कों में दो मुख्तलिफ रद्दमल देखे गए। एक तबके ने जाकिर के इक़दाम को जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जुर्रतमंदाना अलामत करार दिया और उसे फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार बताया। कई सार्फिन ने सोशल मीडिया पर इसकी हिमायत की। दूसरी जानिब कुछ हल्कों ने इस इक़दाम को कानून की खिलाफ वर्जी और आलमी सिफारती आदाब के मनाफी करार दिया। उनका कहना था कि एहतजाज का हक हर शहरी को हासिल है मगर कानून को हाथ में लेना मुनासिब नहीं। इस वाक़े पर शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए आंध्र प्रदेश BJP के नायब सदर व क़ौमी नायब सदर नशीन उमूर नौजवान वो विष्णुवर्धन रेड्डी ने इस नौजवान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में कई ट्वीट भी किए और कहा कि इस नौजवान ने मिस वर्ल्ड मुकाबलों के सिलसिले में लगाए गए परचमों में से इसराइल के परचम को निकाल दिया और उसे फखरिया तौर पर ऑनलाइन पोस्ट किया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और सिटी पुलिस पर जोर दिया कि इस नौजवान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए इस तरह की गुंडागर्दी और नफरत वाले जुर्म पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की जाए।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने सफारती मुहाज पर भी पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए कोशा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की जानिब से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों को आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने के लिए मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती वफ्द को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का मंसूबा बनाया है। इसके लिए मोदी हुकूमत ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की खिदमत हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ पार्टियों के 30 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट को 7 वफूद में शामिल किया है। वफूद की रवानगी आइंदा हफ्ते मुतवक्का है। कसीरुल जमाती वफ्द में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह, बीजेपी के अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, सामिक भट्टाचार्य व दीगर पार्टियों के अरकान शामिल किया गया। जराये ने बताया कि वफ्द में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, एसपी, जेडीयू, बीजेडी, शिवसेना, यूबीटी, सीपीआईएम और कुछ दीगर पार्टियों के अरकान को शामिल किया गया। कांग्रेस के शशि थरूर और एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को मोदी हुकूमत के सख्त मुखालिफ समझा जाता। मुल्क में अंदरूनी मामलात में अक्सर दोनों कायदीन मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस खास मिशन पर दोनों रहनुमाओं का इंतखाब किया है, जिसकी मुल्क भर में तारीफ की जा रही। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन खनसास कौंसल महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी टीम की क़ियादत में तेलंगाना मुल्क भर के लिए एक मिसाली रियासत के तौर पर उभरा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए असल अपोजिशन बीआरएस में जारी अंदरूनी इख्तलाफात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। महेश कुमार गौड़ ने इंकशाफ किया कि पार्टी के अंदर कविता, केटीआर और हरीश राव के दरमियान इख्तिदार की रसाकुशी चल रही। पार्टी सरबराह केसीआर अब सिर्फ अपने फार्म हाउस तक महदूद हो चुके हैं, जो बीआरएस की बिखरती हुई क़ियादत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने पेशगोई की कि बीआरएस आइंदा इंतखाबात तक सियासी तौर पर गैर मुतल्लिक़ हो जाएगी। कौमी सियासत पर बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी पर मजहब को बुनियाद बनाकर सियासी फायदा हासिल करने का इल्जाम लगाया और वज़ीर आज़म मोदी को हदफ तनक़ीद बनाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी इख्तिदार पसंदी को जाहिर करता है। उन्होंने हालिया हिंद व पाक कशीदगी पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर मुल्क ने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया, अवाम को सच क्यों नहीं बताया जा रहा। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस अवामी राय पर मबनी हुक्मरानी और इंतखाबी वादों की तकमील के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के विजन से मुतासिर होकर ज़ात पर मबनी सर्वे करवाकर तारीख रकम की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के फैसले को उन्होंने संगे मिल करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस लीडरान खुसूसन वज़ीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे। उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस पर साइबर क्राइम शिकायत दर्ज की जा रही। ट्रिपल फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ख्वातीन के माथे से सिंदूर साफ करने वाले दहशतगर्दों को जवाब दिया। दहशतगर्दी से लड़ने वाले फौजियों को मेरा सलाम। हसद की साजिश के मुल्क हर मैदान में आगे बढ़ रहा। फौज ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को देखे बगैर जवाब दिया। हमारे मुल्क की ताकत मुसल्लह अफवाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम मोदी की गैर समझौता जंग। इन बातों का इजहार आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने किया। वजीर आला ने विजयवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के मौके पर मुनाकिदा तिरंगा रैली में शिरकत की। वजीर आला ने शहरियों को वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाने पर मजबूर किया। विजयवाड़ा में एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिन्होंने ख्वातीन के माथे पर सिंदूर साफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ उनकी गेम्स काम नहीं आएंगी और अगर वो हमारे मुल्क पर हमला करते हैं तो वो उनका आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि वो इन फौजियों को सलाम पेश करते हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ अनथक जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को मोदी की शक्ल में एक मुयस्सर लीडर मिला है और वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सोने की कीमत में मामूली इजाफा देखा गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 96,230 थी, जो 270 रुपए बढ़कर 96,500 तक पहुंच गई। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 97,850 थी, जो 60 रुपए कम होकर 97,790 तक पहुंच गई। हैदराबाद में भी 10 ग्राम सोने की कीमत 96,500 है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 97,790 रुपए है।
शुमाली हिंद इस वक्त शदीद लू की जद में है। आइंदा 48 घंटों में इसके मजीद तेज होने के अंदेशे के पेश नजर महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि शुमाली हिंद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी का कहर जारी है। यहाँ बांदा में दर्जे हरारत 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। रियासत के 13 जिलों में दिन का दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी के बाद शाम में लोगों को राहत मिली। 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चली और बारिश हुई। यहाँ दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे ज्यादा है। दर्जे हरारत के साथ साथ गर्म हवाओं और रतूबत की सतह में भी इजाफा हुआ, जो तकरीबन 60% तक पहुँच गया है। इससे लू लगने का अंदेशा मजीद बढ़ गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।